we managed to call one of the toppers of this year again, Shubham. Shubham is ranked 41 and he has the highest mark in geography of those who have qualified. Okay, 298 marks. Halaki, there are some people who have got 305 also, but wo baki reasons ke liye qualify nahi kar paaye. Two of them I know who didn't get enough marks in interview, and one of them got poor marks in essays. Okay, but Shubham, as of now, the record bata raha hai hame, geography mein he has the highest mark of 298. And interestingly, Shubham ka ye pehla attempt tha, first attempt, and he has cracked it. So I was waiting for him to come. He has come not from Delhi. So he has managed to come now. So I'll suggest that I will invite him. Okay, we'll have some talk there. और आपका जो भी doubts हैं, see, the more you interact with the people who qualify, you know better about what's required. Problem with us is we ask advice from people who have not qualified. आप अगर market में घूमेंगे आपको कौन दिखाई देगा? Most people who are trying, struggling, 2-3 attempt दिया हुआ है, they not made it. Yeah, come Shubham. In fact, I am seeing Shubham for the first time because he was an online student. So when we know about the results, you also called up and informed. So very happy to have you here. And so I was telling them कि आप जब suggestions लो, when you talk about what to do, what not to do, एक चीज याद रखो, no topper has the same strategy. Remember this. This is my learning. You talk to 10 toppers, 10 of them will tell you something different about what they did. And that is where the smartness lies. Your strategy must be according to your strengths and weaknesses. Your strategy is according to what you think is your priority. But hear them out and let them tell you what has worked for them and what they have done. So congrats again, Shubham. Okay, I'm seeing you for the first time. Okay, I had more imagination what Shubham will look like. Okay, so you are far from what I had thought. एक तो imagine था कि शुभम का दाढ़ी तो होना चाहिए. Okay, so I do not know whether you had a beard or not. Okay, so this is the online. This is where you used to interact. Okay, so congratulations to Manish, Ashwardhan, Vishal, Priyanka. Okay, Mehdeep, all of them are there. Okay, so like I did last time we had Preksha also here. Okay, so Shubham, I will leave it to him. You ask him your doubts. जो भी पूछना है पूछें. And you can be very honest here, as long as मुझे openly गाली नहीं देना. So, and I said, interestingly, it was his first attempt. And, but it does not mean that he has studied for only 5-6 months or 1 year. Am I right there? He must have worked, okay, at least for 1 year, 1.5 years, or 2 years. It's not last 4 महीने का काम नहीं है. Okay, he will have a background. His schooling will help him. His college helps him. The first attempt is possible, provided your background is good, strong, and you are committed. Anyways, so you know what I tell them. So you must tell them whether you agree with that or not. How to add current affairs. They have doubts for you, Saranveer. Okay, this is how I used to feel when I'm teaching. Okay, so I leave it to you. Okay, generally, I disappear from that classroom because मेरे सामने कुछ पूछेंगे नहीं पूछेंगे, and you guys interact. Preksha told me she had coaxed you to interact. Okay, बोलना पड़ा कि पूछना है पूछो. Okay, बेटा ये लोग निकल जाएंगे ना, फिर आप इनको देख नहीं पाओगे. इनके बारे में आप 1-2 साल के बाद में पेपर में ही पढ़ोगे. What they are doing. They're right now in front of you, flesh and blood, talking to you. Okay, so do ask them whatever you have, but make sure that you have thought about the question. Take on, Shubham. It's all yours. Thank you, sir. Yeah. Hello everyone. My name is Shubham. I've secured rank 41 this year with geography as optional. Like before going to the all optional strategy and everything, like basic background of me, so that you know where I come from. I'm from Bihar, Madhubani. I did my basic schooling from Bihar itself till class 10. Then did my +2 from Delhi Public School, Bokaro. And then I came to Delhi. I graduated from Hansraj College, Delhi University, with a degree in computer science honors in 2021. So after I graduated in like June 2021, I started my serious preparation. But before that, I've already decided that I would be like sitting for this examination. I would take geography as an optional. So like even before I started basic preparation, I decided that geography would be my optional. Why did I decide geography would be my optional? Like, since all of you have already decided, I would take a small brief why I took geography. First was that I had an interest in geography right from the school.
but I had no background. Everyone of us studied geography till class 10. After that, I did not study geography, but when I was analyzing what optional to take for geography, I decided geography because I analyzed the syllabus, previous year questions, and the marks trend. I thought कि इसमें marks अच्छे आते हैं, you easily get more than 300, like toppers get more than 300, average selected भी around 270s होते हैं. So I thought कि ये easy होगा. मैंने previous year questions देखा, I thought कि मैं ये कर लूंगा. Then I like saw Pratham Kaushik's strategy, like in 2017 he got around 325 marks. So I saw his strategy, like I just followed his strategy, whatever he told. तो मैं लाइक बेसिक बुक्स मंगा ली, जो भी बेसिक बुक्स थे, लाइक सविंदर सिंह के पांचों पार्ट हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर डीआर खुल्लर हो गया, मेड सिंपल सीरीज हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन. लाइक सोर्स सबको पता है, लाइक सर बता चुके हैं क्या पढ़ना है. मैं अगर उसमें मेरा एक्स्ट्रा था वो मैं ऐड करूंगा बाद में, बट ये मैंने मंगा लिए बिफोर लाइक आई ग्रेजुएटेड. फिर मैंने ये सारे बुक्स को एक बार पढ़ लिए लाइक अ स्टोरी, कि लाइक मुझे पता चले कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. सो व्हेन आई रेड इट एज अ स्टोरी, मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, बट कंसेप्चुअल पार्ट जो था थ्योरीज वाला या एप्लीकेशन पार्ट, वो लाइक मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा. तो आई डिसाइडेड कि चलो एक फाउंडेशन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था. तो मैंने लाइक सबीर सर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन किया इन द अप्रैल 2021 बैच. So I did the foundation coaching with him, then enrichment part, then test series before the prelims. So after the prelims, I joined 2 more test series for different perspective. Like मुझे align नहीं करना था एक ही टेस्ट सीरीज के साथ, because if you like go with a single test series, तुमको पता चल जाएगा वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे चेक करते हैं. This was my whole like optional journey. Now like coming to the basic strategy, what I thought पहले कि मुझे ये काफी लिखना पड़ेगा, मुझे खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. I would have to do value addition based on the strategy that I have read from the various toppers of geography. तो मैंने जब क्लास होता था, ऐसे ही मैं क्लास अटेंड करता था ऑनलाइन. So I used to attend the 2-hour class. Then in the evening, what I used to do was to go read the basic books like Savinder Singh, because not everything is taught in the class. Even in like Savir's class, 90% of the syllabus will be completed, rest 10% नहीं होंगे, या जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उनके थोड़ा हायर लेवल या थोड़ा छोटे छोटे चीज रह जाते हैं. मैं एग्जांपल भी दूं, लाइक स्पीलियोथेम्स लाया था लाइक मेरे साल, वो जनरली क्लास में नहीं पढ़ाते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स में, बट जब वो पढ़ा रहे थे लैंडफॉर्म्स वाला पार्ट, मैं जाता था शाम में बुक्स खोलता था, देखा कि सर क्या नहीं पढ़ाए हैं सिलेबस के पार्ट में, तो मैं देखता था, फिर वो अपने नोट्स में ऐड कर लेता था. सो माय नोट्स, क्लास नोट्स बिकेम बोथ क्रिस्प एज वेल एज बल्की. सो हाउ डू बैलेंस क्रिस्प एंड बल्की? सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स इन द क्लासमेट नोटबुक. तो कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, कुछ भी नया, लाइक आई लर्न फ्रॉम द बेसिक बुक्स और द इंटरनेट, आई यूज्ड टू ऐड स्टिकी नोट्स और A4 शीट्स इन बिटवीन. सो ये मैं क्लास नोट थे, उसमें ये A4 शीट्स भी ऐड हो जाते थे या स्टिकी नोट्स ऐड हो जाते थे. स्पीलियो थे, मैंने बेसिक बुक से पढ़ के रखा था, वो मेरे नोट्स में थे. लाइक आई हैड 2 पेज नोट्स ऑफ कास्टिक लैंडफॉर्म्स, स्पीलियो थे, उसके सारे डायग्राम थे, टाइप्स थे विद एग्जांपल. तो एक्चुअली मुझे एग्जाम में आता था, लाइक पहला ही क्वेश्चन देखिए अगर शॉक हो जाओगे तो वो तो डिफिकल्ट हो जाता है पूरा पेपर करना, बट मेरे लकी था कि वो मुझे आता था, मैंने काफी अच्छे से लिख दिया. बट स्ट्रेटजी मैं बाद में बताऊंगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले करता नहीं था. सो कमिंग टू द लाइक बेसिक सोर्स, ये मेरा स्ट्रेटजी था कि मुझे लाइक क्लास करना है, शाम में जाके उसको रिवाइज करना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, अगर उसमें कुछ नहीं पढ़ा है तो वो अपने नोट्स में ऐड करना है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सर बोलते होंगे लाइक 1 पेज समरी बनाने, सिनॉप्सिस बनाने के लिए, लाइक मैं वो नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो डबलिंग ऑफ द एफर्ट होगा. जो मैं क्लास में नोट्स बना ही रहा हूँ उसका मैं क्यों बनाऊं फिर से 1 पेज समरी. तो मैं क्लास नोट्स से बहुत क्रिस्प होते थे, और लाइक उसमें बस ऐड करता था कि वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है. आप एक भी माइक्रो टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ द सिलेबस बहुत लंबा है, बट लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी स्मॉल टॉपिक्स लाइक पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और कंटेम्प्रेरी इशूज में एक क्वेश्चन उठा के, या लाइक वाटर शेड मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं. तो ये बेसिकली क्लास में उतने हाई लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है. तो आई थिंक डोंट लीव दिस माइक्रो टॉपिक्स, आई विल टेल मोर लेटर अबाउट हाउ आई डिड दिस माइक्रो टॉपिक्स. तो बेसिक स्ट्रेटजी थी, सर क्लास हुआ, ये हो गया. उसके बाद मेरा सिलेबस आई थिंक जनवरी स्टार्टिंग में खत्म हो गया था, लाइक बेसिक सिलेबस फाउंडेशन का खत्म हो गया था. हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, स्मॉल टॉपिक्स. देन उसके बाद सर एनरिचमेंट कराते, इफ यू आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उसमें फाउंडेशन के बाद एनरिचमेंट होता है. एनरिचमेंट में व्हाट दे डिड वाज लाइक taught some small topics and also higher levels. For example, स्लोप वाला पार्ट था, तो स्लोप में डिफरेंट मॉडल्स पर आते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम डेविस बैंक, ये तो फाउंडेशन में हो जाएगा.
या लाइक स्लोप डिक्लाइन स्लोप वो वाला थ्योरी, लाइक मैं सच्ची भूल चुका हूँ, तो मैं याद करने का कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। तो लाइक थोड़ा एनरिचमेंट में थोड़ा हायर लेवल पे होते हैं, बट आई थिंक वो उतना बेनिफिट है नहीं एनरिचमेंट का अगर देखा जाए तो। लाइक सर में भी देख, क्योंकि एक्चुअली में आते नहीं वो एग्जाम में, मैंने लाइक आई डोंट थिंक एक भी क्वेश्चन आया उस एनरिचमेंट पार्ट से या एक्चुअली यूज हुआ, बट इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आंसर्स, वो आप सबकॉन्शियसली यूज होगा। लाइक जब आप टेस्ट सीरीज दोगे या लाइक एक्चुअल मीन्स लिखोगे, तब आपको याद है कि एनरिचमेंट में मैंने ये पढ़ा था, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, तो अगर वो एनरिचमेंट पर पढ़ाया होगा तो वो हेल्प करेगा। डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है बट इनडायरेक्टली कर सकता है, तो अगर एनरिचमेंट में हो तो कर लो। उसके बाद लाइक टेस्ट सीरीज भी हुआ था सिंस आई वाज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड, तो लाइक पांच टेस्ट हुए थे बिफोर द प्रीलिम्स। तो सो बिफोर द प्रीलिम्स आई गिव द 5 टेस्ट, मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो लाइक माय सिलेबस एवरीथिंग, सिलेबस नोट्स टेस्ट वाज कंप्लीटेड इवन बिफोर द प्रीलिम्स। लाइक बिफोर द प्रीलिम्स आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे ज्योग्राफी में अच्छे आएंगे क्योंकि आई हैड डन एवरीथिंग। आफ्टर द प्रीलिम्स व्हाट आई डिड, आई टोल्ड दैट आई जॉइंड 2 टेस्ट सीरीज, बट इवन बिफोर दैट सब माइक्रो टॉपिक जो बच गए थे, तो वो मैं जाके देखता था कि इसके सोर्स क्या है, तो मतलब ये कहाँ पे अच्छे से मुझे मिल सकते हैं। जैसे मैंने पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का एग्जांपल लिया, तो मैं WTO के वेबसाइट पे गया, तो मैंने देखा कि कैसे कैसे इसमें कैसे कैसे डाटा है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है वर्ल्ड ट्रेड, लाइक बोथ स्पेशियल एंड टेम्पोरल, की लाइक इंडिया का ट्रेड पहले कहाँ होता था अब कहाँ होता है, पहले डेवलप ट्रेड होता था अब ग्लोबल साउथ ट्रेड होता है, कैसे टेम्पोरल कैसे इंक्रीज हुआ है, क्या क्या जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या छोटे मोटे टॉपिक जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या रेलवे डेवलपमेंट हो गया। इसके थोड़े 1 पेज नोट्स बनाए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है या जो करंट अफेयर्स में चल रहे थे उनके मैंने नोट्स बनाए आफ्टर द प्रीलिम, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो ये मैंने बना लिए, तब मेरा लाइक 100% सिलेबस हो गया था। देन आई डिड वैल्यू एडिशन। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन व्हाट आई डिड वाज फर्स्ट क्रिएटेड अ सेपरेट 2-3 पेज शीट ऑफ एवरी टॉपिक, जिसमें मैं डायग्राम्स लिखता था, डेटा लिखता था, कुछ नए केस स्टडीज लिखता था। सो फॉर जियोमॉर्फोलॉजी में नोट्स तो थे, बट 2-3 पेज नोट्स थे कि जो जो डायग्राम है वो एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करता था, उसको देखता था, क्योंकि एक्चुअली में तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो जियोमॉर्फोलॉजी के में 2-3 पेज के शीट थे, सेम फॉर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। जो भी मेरे नोट्स में थे और बुक्स में थे वो उसको मैंने सेपरेट ले लिया था कि मुझे वो बार बार रिवाइज करना पड़े, बार बार मतलब इजिली मेरे दिमाग में फिट हो जाए, कहते हैं मेमोरी इम्प्रिंटिंग वाला थिंग। तो मेरे दिमाग में डायग्राम तुरंत था, वो डायग्राम को भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 2 का देखे, लाइक पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी, अगर आप DR खुलर यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारा इंडिया मैप है, बट थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। लाइक इफ सेक्स रेशियो का एग्जांपल देख लिए तो मोर देन 920, मोर देन 940 और समथिंग लाइक दैट। तो वो मैं कर लेता था, इसको सिंप्लीफाई कर लेता था। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो का ही देख रहे तो लाइक अबव द नेशनल एवरेज एंड बिलो द नेशनल एवरेज, तो बस मेरे पास 2 क्राइटेरिया होता था। ये सेपरेट मैप में वैल्यू एडिशन में करता था, तो जो सेपरेट शीट बनाया पेपर 2 का, उसके लिए मैं बस ये सिंप्लीफाई करता था डायग्राम को। और जो भी लाइक डेटा या केस स्टडीज है, केस स्टडीज का मैंने एक एक्स्ट्रा शीट बनाया था। तो आई हैड अ केस स्टडी फॉर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। जब मेरे लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में मेरे पास टाइम था, तो व्हाट आई डिड वाज कि जो जो टॉपिक्स के मेरे पास लाइक केस स्टडीज या एग्जांपल्स नहीं थे, मैं जाके गूगल पे करता था लाइक सम टॉपिक बेस्ट प्रैक्टिस, वाटर सेट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसमें से कुछ भी मिला तो मैं लिख लेता था अपने नोट्स में, एक्स्ट्रा वाले केस स्टडीज वाले नोट्स में। तो एक्चुअली बहुत हेल्प किया। तो व्हाट आई डिड इन पेपर 1 वाज मैं बस लाइक वर्ल्ड के केस स्टडी लिखा, नॉट अ सिंगल इंडियन केस स्टडी इन पेपर 1। जितने भी लाइक क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन आए थे या कुछ भी क्वेश्चन था, वो सारे मेरे वर्ल्ड के केस स्टडीज थे, विथ इंक्लूडिंग मैप एंड इवन डेटा इन द केस स्टडी। अगर मैं एग्जांपल दूं, शायद वाटर सेट मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता, टेस्ट सीरीज में भी आता था वाटर सेट मैनेजमेंट। तो आई हैड केस स्टडी की, गुजरात का एक लाइक विलेज था, वहाँ पे वाटर सेट मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी इतना से इतना हो गया था। So I had data regional map of Gujarat and the like in the case study. So case study you should do like not just write stuff, random generic stuff in the case study की हो गया, अच्छा हो गया, ये था case study. Add some extra regional diagram as well as data in the case study. वो help करता है. Also you could make not just one diagram but multiple diagrams in a question. Like I remember एक mountains वाला question था इस साल पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट्स में, कि हाउ माउंटेन्स इवॉल्व और समथिंग लाइक दैट। वो मैंने 3 पेज पूरा डायग्राम से ही भर दिया, क्योंकि वो 3 या 4 पार्ट क्वेश्चन थे अबाउट कॉजेस और समथिंग डिफरेंशिएट।
लाइक मैंने बहुत सारे डायग्राम्स उसमें बना दिए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन इवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल। तो लाइक मैंने माउंटेन्स का भी बनाया, प्लस वर्ल्ड मैप बना दिया कि कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन है। तो आप ये सब कर सकते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी हर क्वेश्चन में ला सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता था पेपर। सो इन द पेपर 1 मैंने लाइक पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ह्यूमन ज्योग्राफी को अटेम्प्ट करूंगा। वाई? बिकॉज आई थॉट कि इसमें करंट अफेयर्स ला सकते हैं, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकते हैं, कि अगर मुझे नहीं भी आता हो मैं फिर भी लिख लूंगा। क्योंकि अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखो तो वो कंसेप्चुअल पूछते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें आप कुछ भी लिख लो। बट ह्यूमन ज्योग्राफी में था कि लाइक मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, उसमें नया ऐड कर सकता हूँ, केस स्टडीज डाल सकता हूँ, थ्योरीज डाल सकता हूँ। और जो जो थे ह्यूमन ज्योग्राफी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा रेलिवेंस ऑफ सम थ्योरी का आएगा, रेलिवेंस ऑफ some basic models of population और the like settlement geography, वो आएगा ही। तो लाइक मेरा थिंकिंग था मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा ह्यूमन पार्ट से, एक क्वेश्चन फिजिकल पार्ट से इन पेपर 1। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी मेरा स्ट्रेटजी था कि मैं एक पर्सपेक्टिव से एक मॉडल से जरूर करूंगा, क्योंकि मॉडल्स वाले क्वेश्चन मुझे आते होंगे, रेलिवेंस वाला या कोई मॉडल्स को डिस्क्राइब करने वाला। तो ये मैंने पहले ही कर लिया था, ये बेस था कि लाइक मैंने ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूंगा। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, तब मुझे पता चला कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये मुझे पता चल गया था मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये कर दिया। और ये मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी करना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या आ सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट इज इन द न्यूज। तो मुझे लगा था कि लाइक वेबर का पूछेंगे, वॉन थुनेन का रेलेवेंस पूछेंगे, वो एक्चुअली एग्जाम में आया। इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर था, मैंने टेस्ट में ये सारे आंसर लिखे भी थे। तो मैं एक करता था, एक पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करूंगा, एक मॉडल से क्वेश्चन करूंगा, और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का जो होगा मैं उससे करूंगा, क्योंकि वो काफी मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था। और एक अगर फिजिकल में जो भी आता है मैं वो कर लूंगा। उसमें भी आप देखो तो 3 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्कर टू 15 मार्कर। तो उसमें मेरा था अगर मुझे 20 मार्कर्स आते होंगे वो मैं क्वेश्चन करेगा। 20 मार्कर से भी लाइक 3-4 पार्ट होते हैं उस क्वेश्चन में, अगर मुझे चारों पार्ट आते हैं तो मैं वो 3 क्वेश्चन कर लूंगा, अगर मुझे तीसरा क्वेश्चन नहीं भी आता रहेगा। क्योंकि लाइक मेरा लॉजिक था कि 20 मार्कर्स में मुझे 60-70-80% मार्क्स मिल सकते हैं, तो 20 में अराउंड 15-16 मार्क्स भी मिल सकते हैं इफ आई नो ऑल द 4 पार्ट्स। बट लकली मैंने जो क्वेश्चन चूज किया था उसमें सारे आते थे, लाइक तीनों क्वेश्चन आते थे, तो ये थोड़ा लक भी था। नाउ कमिंग टू द पेपर 2 स्ट्रेटजी, व्हाट इसका सारे लाइक जो भी ऑप्शन उठा लो, पेपर 2 जीएस टाइप क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में लाइक नॉर्मल जीएस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, लाइक आई कैन राइट। So I used to do 4 things to differentiate my answer, to make my answer geographical in paper 2. First is use theories from paper 1. So I use a lot of theories in paper 2. How you can use theories? So in the starting intro itself, you can write like according to industry के questions आ रहे हैं, according to the Weber location triangle ये। अगर even in the body you can use that just to make some like if like Christoph or something, right? So if I make an argument and if the argument is similar to what a geographer has said, I used to like make a bracket and write like कि यहाँ इसका ये argument है, बस मैंने simplify कर दिया है। So I used to do this. I used to add theories a lot in paper 2 from paper 1. Then I use a lot of keywords from paper 1. What I meant is पर्सपेक्टिव वाला पार्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स लाइक इन्वायरमेंटलिज्म हो गया, वेलफेयर ज्योग्राफी हो गया। तो पेपर 2 में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे तो मैं कंक्लूजन में स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज करता था। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है तो मैं लिखता था कि इन्वायरमेंटलिज्म फॉलो करना चाहिए और समथिंग लाइक दैट, और यू शुड फॉलो द वेलफेयर ज्योग्राफी ऑफ डीएम्स में, तो समथिंग लाइक दैट। तो और इसको मैं अंडरलाइन कर देता था कि उन्हें पता चले कि मुझे पेपर 1 भी आता है, थ्योरीज आता है, मैं पर्सपेक्टिव अच्छे से पढ़ा हूँ। So I used to use perspective keywords as well as other keywords in the paper 2. तो आप ये कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल लिस्ट भी बनाया था कीवर्ड्स का कि मैं क्या क्या यूज कर सकता। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ज्योग्राफर्स के बुक्स क्या क्या हैं, किस ईयर में पब्लिश हुए थे, तो ये मैं एक सेपरेट लिस्ट बना लिया था कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन से पार्ट में यूज कर सकते हैं। और लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स थे जैसे ट्रेड वाला हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके भी लाइक कीवर्ड्स बना लिए थे, लाइक ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में काफी लाइक एग्जांपल्स बना लिए थे कीवर्ड्स के, तो वो मैं करता था। थर्ड इज रीजनल पर्सपेक्टिव, ये सर भी काफी बोलते होंगे रीजनल पर्सपेक्टिव लाने के लिए पेपर 2 में। सो व्हाट आई डिड वाज, कोई भी क्वेश्चन आया इंडिया से रिलेटेड, अगर मैं उसमें रीजनल पर्सपेक्टिव ला सकता तो मैं ऐसे लाता था, लाइक आई टू डिवाइड इंडिया इनटू सेपरेट रीजन्स। फॉर एग्जांपल अगर है कि फ्लड्स का क्वेश्चन है
तो फ्लड्स हर डिफरेंट रीजन में अलग कॉजेस से अलग इफेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट में अलग रीजन होगा, प्लेन्स में अलग रीजन होगा फ्लड्स का, माउंटेन्स में अलग होगा, वहाँ फ्लैश फ्लड्स होंगे या ग्लेशियल बर्स्ट होगा। तो आई यूज्ड टू सेपरेट ऑल द रीजन्स, उनके अलग कॉजेस बताता था, अलग अलग इफेक्ट्स बताता था। यू कैन डू दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट में पीवाईक्यूज उठा के खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि रीजनल पर्सपेक्टिव कैसे लाना है। इसके साथ मैं रीजनल डायग्राम भी बनाता था, जो बस नॉर्थ ईस्ट हो गया या कोस्टल इंडिया हो गया या इवन आइलैंड्स हो गया या इवन पर्टिकुलर स्टेट की, अगर मुझे बस बिहार का बनाना है तो मैं बना सकूं बिहार का। अगेन ये प्रैक्टिस से ही होगा, मैं प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि रीजनल पर्सपेक्टिव कैसे लाना है। अगर ये आप कर लेते हो तो मैं कहूँगा पेपर 2 में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप रीजनल पर्सपेक्टिव अगर ला, क्योंकि ज्योग्राफी रीजनल ज्योग्राफी लाइक होता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड रीजनल स्पेशल एंड ये वाला ज्योग्राफी, तो रीजनल वाला आपको पार्ट लाना पड़ेगा पेपर 2 में। चौथा मैं करता था गिव अ लॉट ऑफ डेटा एंड एग्जांपल, सो आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ केस स्टडी डेटा, अगर कुछ भी मुझे डेटा आता हो तो मैं डेटा डाल देता था। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन में लाइक मेरे मेन से पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट आया था, रिलीज हुआ था, तो उससे मैंने बहुत सारे डेटा निकाल लिए थे, माइग्रेशन के बहुत सारे डेटा मेरे पास थे, तो मैं बहुत डेटा, माइग्रेशन का शायद क्वेश्चन था भी लास्ट ईयर, तो माइग्रेशन में मैंने बहुत सारे डेटा यूज किया, बहुत सारे लाइक एग्जाम्पल केस स्टडीज यूज किया। ऑलमोस्ट पेपर 2 में मेरे 80% क्वेश्चन में लाइक केस स्टडीज होते थे या डेटा होता था। कुछ भी अगर आर्गुमेंट्स भी लिखना है आपको, लाइक कॉजेस समथिंग लिखा है, कोई क्वेश्चन है तो आप एक आर्गुमेंट लिखो, उसको सब्सटेंशिएट करो विद आइदर एन एग्जाम्पल और ए डेटा, जस्ट डोंट राइट अ कॉज सिंपल, कि उन्हें कैसे पता चले एक्चुअली में कॉज है, लाइक कुछ तो तुम सब्सटेंशिएट करो उसको, लाइक ऐड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो मैं ये करता था, सब्सटेंशिएट करता था विथ आइदर एग्जाम्पल। अगर इवन एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, मान लो ऑब्वियसली हमेशा नहीं हो सकता है मेरे पास, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता था, लाइक राइट अ फ्रेज हियर कॉज में, उसको थोड़ा 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, इफ आई डोंट हैव एनी एग्जांपल्स और डेटा विथ मी। Another thing that I used to do was temporal and spatial stuff. So if a question was like related to patterns or evolution, so I used to structure my answers कि एक part में मैं spatial लिखूं, spatial की how a particular phenomena is related with other regions or other parts, second temporal की like how it has evolved with time। तो ये 2 पार्ट है ज्योग्राफी का। इफ लाइक पर्सपेक्टिव आई थिंक कोई पढ़ाई तो हुआ नहीं होगा, बट पर्सपेक्टिव वाले में तुम लाइक हिस्ट्री इसका पता चलेगा, स्पेशियल ज्योग्राफी टेम्पोरल ज्योग्राफी क्या होता है, इसके बाद ही तुम लोग को पता चल पाएगा कि स्पेशल कैसे करते हैं। कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन हो तो तुम ये लगा स्पेशल पैटर्न एंड टेम्पोरल पैटर्न, या कुछ भी इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन हो या कॉन्सिक्वेंसेज वाला क्वेश्चन हो, उसमें स्पेशल एंड टेम्पोरल, लाइक ये सब बजवर्ड्स है, ज्योग्राफिकल बजवर्ड्स। ये अगर बजवर्ड्स तुम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो तो जो भी एग्जामिनर होगा उनको अच्छा लगा, एटलीस्ट दैट्स व्हाई आई थॉट कि लाइक श्योर कुछ ने क्या वर्क किया, लाइक मैं भी जो भी बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में ये वर्क किया या नहीं, क्योंकि हमें मार्क्स नहीं पता है किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, किसी को नहीं पता होगा। लाइक ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ड है स्पेकुलेशन पे, या लाइक व्हाट गिव मी कॉन्फिडेंस कि मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा, बट अगेन मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में ये वर्क करेंगे नहीं करेंगे, किया नहीं किया। सो लाइक अगर आपको अच्छा लगता है देन ओनली टेक दीज ऑल थिंग्स इन अकाउंट, अगर नहीं अच्छा लगता है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये काम करेगा, तो यू कैन एक्चुअली डिस्कार्ड ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तभी ट्राई करना ये सब। So these all things I did in paper 2 to make my like answers more geographic. So I got like 152 in paper 1 and 146 in paper 2. That is 298, which is the highest this year among those selected. So I got this much in paper 2. I think this is the highest in paper 2. I have not seen all the like marks, but 146. So I did all these things along with regional diagrams, more diagrams to get that much marks. So I think this was my basic strategy. If I've let anything कुछ भी है तो you can ask questions. कुछ भी अगर doubts है तो. See, my notes were very crisp. Even the class note, I just 3 classmate notebook. उसमें मैं A4 sheets add कर देता था. So my notes were very crisp. मैं like कुछ भी extra add नहीं, जो क्लास में भी हो रहा है उसमें भी selectively like लिखता था कि अगर कोई थ्योरी है, थ्योरी में क्या है, बेसिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, like किसने दिया या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, बेसिक प्रेमाइस क्या है, फिर लाइक इफेक्ट्स क्या है उसके, फिर अपोजिट लाइक क्रिटिसिज्म क्या है थ्योरी का। तो लाइक इन नोट्स फॉर्मेट में बनाता था, फ्रेजेस बस लिखता था, और जो भी वैल्यू एडिशन होता था या तो मैं स्टिकी नोट चिपका देता था या A4 शीट डाल देता था।
So my notes were very crisp. मैं 2 दिन में रिवाइज कर लेता था. So after the like GS4 पेपर में एक्चुअल लाइक ऑप्शनल 4-5 दिन का गैप मिलता है. तो मैं 4 दिन में 2 बार एक्चुअली रिवाइज कर लिया बिकॉज माय नोट्स वेरी क्रिस्प. तो अगर आपके नोट्स क्रिस्प है तो देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग सिनॉप्सिस. आप वही नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं. बस ट्राई टू मेक योर नोट्स वेरी क्रिस्प. लाइक आई डोंट हैव माय नोट्स विथ मी बट मैं बोलूंगा सर को लाइक स्कैन करके डाल देने कहीं पे. आई हैव माय नोट्स विथ लाइक एट माय होम. So I will share my notes, like I will tell them to share the notes I want. Yeah. Like I told earlier कि मैं 4 घंटे बस पढ़ता था before the prelims. 2 घंटे class and 2 घंटे in the evening to read standard books, revise the same stuff again and if time permits 2-4 PYQs देख लेता था कि PYQ जो मैं यूनिट अगर खत्म हो गया, मान लो जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गया तो उसका जो PYQs है वो मैं एक्चुअली कर पा रहा हूँ या नहीं, based on the class note or the notes I have made. अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो लाइक आई यूज्ड टू ऐड इनटू माय नोट्स की जो रह गया है. तो बस मैं 4 घंटे पढ़ता था. देन बाकी लाइक न्यूज़पेपर एंड द जीएस स्टफ आई थिंक लाइक फिक्स तो नहीं था बट आई डोंट थिंक एवरेज 8 घंटे से ज्यादा जाता होगा कभी भी. अगेन स्टेजेस पे प्रीलिम्स से पहले मैं ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ूंगा, मेंस से पहले ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ूंगा. तो यूज टू चेंज, लाइक फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा. सो डिपेंड कर कौन से स्टेज में आपका प्रिपरेशन. लाइक मैं अगर 4 घंटे देता था स्टार्टिंग अप्रैल 2021 से ही तो मार्च 2022 तक मेरा सारा ज्योग्राफी हो चुका था. देन आफ्टर द प्रीलिम्स आई जस्ट यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट. मैं टेस्ट प्लान कर लिया था कि किस दिन दूंगा, हाउ मच डेज टू गिव फॉर रिवीजन और एनालिसिस कैसे करूंगा. सो जस्ट प्लान द टेस्ट बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस, बस वही था. और ये शायद हो जाता है मैनेज. यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी. लाइक you can't copy my time management, you have to make your own time. क्योंकि मेरा शेड्यूल अलग होगा तुम्हारे से. तो मेक योर ओन शेड्यूल. देखो कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है. देन बी फ्लेक्सिबल. रिवाइज करना पड़ेगा बहुत सिंस आई मेड अ सेपरेट नोट ऑफ स्टैटिकल डेटा वगैरह. तो आई शुड जस्ट रिवाइज. इट डज नॉट टेक मोर टाइम टू रिवाइज. जस्ट half an hour in the night. I should like make data of everything. Yes, 1 2 3 4 as well as optional. तो ये बार बार रिवाइज करो. Then apply it in the test. जो टेस्ट दोगे मॉक टेस्ट तो अपने याद हो जाए. लाइक आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट. अगर मैं अपने बात करूं लाइक आई गेव मोर देन 100 टेस्ट फॉर प्रीलिम थ्रू आउट द ईयर, मोर देन 80 टेस्ट फॉर द लाइक मेंस कुछ इंक्लूडिंग ऑल द ऑप्शनल. in between prelims and mains I gave around 20 tests just for the geography in between prelims and mains. So I used to give a lot of tests. So इतना टेस्ट देने के बाद याद हो जाता है डेटा. So what I did for perspective was that पहला लाइक सबीर सर के जो क्लास होते थे उससे नोट्स बना लिया. उसके दिन जस्ट रिवाइज. Also I also read like आरती दीक्षित एंड सुदीप्ता अधिकारी बुक अगेन सेलेक्टिवली. जो टॉपिक नहीं पढ़ाए सर ने, एक्सटेंसिवली कवर नहीं किए हैं या कोई भी बुक के नाम या एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बुक वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था. तो थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. In paper one perspective वाला part specifically you should use what the authors have said. उनका डायरेक्ट कोट्स करो. वो हाँ ये बुक्स में मिलेंगे, ये तुमको नोट्स में कहीं नहीं मिलेंगे. तो रीड आरती दीक्षित सुदीप्ता अधिकारी अगेन सेलेक्टिवली जो सिलेबस में है एंड जस्ट टेक आउट कोट्स फ्रॉम देम. अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्यूआर का जो लाइक क्रिटिसिज्म है उसमें क्रिस्टॉफ का बहुत सारे कोट्स हैं. तो मैं डायरेक्ट क्रिस्टॉफ का कोट करता था एक्चुअली एग्जाम में. ये लाइक पेपर 1 में करना पड़ेगा. एक ज्योग्राफिकल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा. ये टाइम लगता है पर्सपेक्टिव में बट एक बार अगर आपको नोट्स बन गया ना तो इजी हो जाता है. जस्ट रिवाइज स्टफ एंड गिव टेस्ट. तो मैं ये करता था. सिंस माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईएफएस अराउंड 60 to 70% उसी पे चला लाइक फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस पे. और एंड आई थिंक ज्योग्राफी से इफ यू इंक्लूड टाइगर चीता रिलोकेशन अगर उसमें इंक्लूड करेगा तो उन पे पूछा था, फैक्चुअल क्वेश्चन था. तो कुछ उतना रिलेटेड नहीं था ज्योग्राफी से. आई डोंट नो लैक बट yeah, I think giving a lot of I understood कि करना क्या होगा मुझे ज्योग्राफी में. मुझे लाइक कंसेप्ट से ही करना होगा तो कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए. देन वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा कि मुझे लाइक एक्स्ट्रा केस स्टडी चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स चाहिए होंगे. ये जो मैंने ये सोचा लाइक आई थॉट दिस वाज माय ओरिजिनल स्टफ. आई डोंट थिंक आई हैव रेड एनीथिंग इन द टॉपर. ये जो मैंने बनाए थे पेपर 2 के लिए मैंने खुद से सोचा कि लाइक ज्योग्राफी कैसे बनाए. सर भी बोलते थे क्लास में लाइक कभी बोलते थे थ्योरी यूज करो, कभी बोलते थे रीजनल पर्सपेक्टिव. तो मैं जब लाइक सबकॉन्शियस माइंड में चल गया कि मुझे ये यूज करने पड़ेंगे मुझे अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो. एंड दस डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आई गिव ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट दैट आई जॉइंड. आई यूज्ड टू गिव टाइम मैनर में 3 घंटे में जाके टेस्ट दूंगा. और उससे पहले स्ट्रेटजी बनाता था. जब भी पेपर 2 का टेस्ट देने जाता था
ये मैं देख लेता था कि मुझे ये यूज करना है एक्चुअल एग्जाम में, यूज कर एक्चुअल टेस्ट में ये देखता था कि मैंने ये स्ट्रेटजी एक्चुअली में अप्लाई किया या नहीं। तो मेक द स्ट्रेटजी, अप्लाई दो स्ट्रेटजी इन द टेस्ट, ताकि मेंस में इजी हो जाए। तो मुझे लगा मेरे लिए यही वर्क किया कि मेरे कॉन्सेप्ट सही थे, मैंने वैल्यू एडिशन किया, बार बार रिवाइज किया, अपने खुद के नोट्स थे, लाइक फॉर एवरी टॉपिक आई हैड माय ओन नोट्स। मैंने लाइक किसी टॉपर्स के नोट्स को आज तक कभी नहीं देखा, लाइक आई डिड नॉट सी एनी टॉपर्स नोट। मैं खुद के नोट्स बनाए और वो रिवाइज बहुत बार किया, देन टेस्ट दिया। आई थिंक सफिशियंट है ये, अगर करोगे अच्छा मार्क्स आएगा। देना नहीं, थोड़ा लक भी है, वो तो होता रहेगा, बट उस पर क्रिप करने का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आई हैव नॉट रेड अ सिंगल पेज ऑफ ऑल दोस स्टफ दैट यू हैव सेड। मेरा लॉजिक था कि लाइक मैंने पीवाईक्यूज देखा, मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मुझे यूज ना पढ़ना पड़ेगा तभी मैं वो आंसर कर पाऊंगा। लाइक इफ यू सी द पीवाईक्यूज, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो फिर टाइम वेस्ट करके क्यों कर मैं लाइक मेरा लाइक करंट अफेयर का सोर्स बेसिक न्यूज़पेपर्स होता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था एंड डिड द डेली न्यूज एनालिसिस में देखता था 2-3 का वो, और बस विजन का मंथली मैगजीन पढ़ता था, दैट्स टफ। और शायद एडुकेमी वाले कॉस्मोस भी निकालते थे पहले, अब शायद नहीं निकालते हैं। निकालते हैं? ओके। तो मैं कॉस्मोस पढ़ लेता, कि उसके नोट्स नहीं बनाता था, बस एज लाइक हॉबी पढ़ लेता था। तो आई डिड नॉट रीड ऑल दोस, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर तुम वो आंसर दे पाते हो उसके हेल्प से, या लाइक थोड़ा भी वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। बट हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है वो पढ़ के, आपके पास टाइम है, मेरे पास भी टाइम था बट मैंने नहीं किया। अगर टाइम है, इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है। कोर्स सोर्सेज, फर्स्ट न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट मिल जाता था वो मैं सेपरेट एक डायरी में लिख लेता था, and after the prelims I compiled that into GS 1 2 3 4 and optional. Then कुछ भी अगर लाइक नेट पे चल जाता था, जैसे मैंने कहा कि वाटर सेट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उससे एक मिल जाता था। देन अगेन इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर, उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और सोर्स थे। इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स अगेन नो, मैं लाइक जस्ट मैं गूगल पे डाल देता था दिस एंड बेस्ट प्रैक्टिस, दिस एंड केस स्टडी, दिस एंड एग्जांपल्स, उसमें जो भी बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी अच्छा लगा। कोई रिसर्च पर लाइक क्रेडिबल रिसोर्स होना चाहिए, कुछ अच्छा रिसर्च पेपर है या कुछ अच्छा वेबसाइट है, वो वहां से मैं उठा लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता था एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट प्रैक्टिस है, तो मुझे एक नॉर्थ ईस्ट का मिल गया था बेस्ट प्रैक्टिस, मैं वो लिख लिया था। तो बस यही करता था। एनी मोर क्वेश्चंस? एथिक्स का सिंपल था, मुझे पता था कि ये कंप्लीट करना होगा पेपर विथ ऑल द लाइक क्वालिटी आंसर्स, तो मैं सिर्फ टेस्ट देता था। आई हैड माई ओन नोट्स फॉर GS4, मैंने नोट्स बनाए थे बेस्ड फ्रॉम इंटरनेट एंड विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है उससे मैंने नोट्स बनाए थे, एंड जस्ट प्रैक्टिस लॉट, क्योंकि GS4 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें आपको एग्जांपल्स इंक्लूड करना पड़ेगा, कीवर्ड्स यूज लाइक एथिकल कीवर्ड्स है वो बन, तो मैंने एक एक्स्ट्रा उसका भी अलग शीट्स बना लिया था GS4 में, क्या क्या एथिकल कीवर्ड्स यूज करना होता है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, लाइक कोई भी IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है, उनके कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स है, तो मैं वो लाइक उनका लिस्ट पहले से बना लिया था। कोई भी अच्छे लाइक पेपर उससे पर उसको मैंने फिर इम्प्लीमेंट किया, अगेन टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट किया, फिर वही एक्चुअली मेंस में इम्प्लीमेंट किया। तो लाइक थोड़ा वैल्यू एडिशन उसमें भी कर सकते हो, और कोई स्ट्रेटजी तो था नहीं एथिक्स के लिए। ऐसे के लिए भी लाइक मुझे तो लगता है ओरिजिनलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में, तुम किसी का लाइक कॉपी नहीं कर सकते हो, किसी का राइटिंग स्टाइल, तो हैव योर ओन ओरिजिनल आइडिया। मैंने थोड़ा नोट उसका भी बनाया था, फॉर एग्जांपल फिलोसफर्स का, लाइक कौन से फिलोसफर्स का क्या फिलोसफी है उनको मैं कोट करता था एक्चुअल ऐसे में, फिर कोट्स का बनाया था, देन एनेक्डोट्स का भी लिस्ट बनाया था, बट एक्चुअली में ये काम नहीं आते हैं क्योंकि यू डोंट रिमेम्बर ऑल दोज कोट्स, और जो भी वो फ्लो में आ रहा है वो लिख देते हो। तो ये कर सकते हैं आप, फिलोसफर्स यूज आ रहे थे, फिलोसफर्स मैंने बहुत सारा कोट किया था। तो यूट्यूब पे एक चैनल है द स्कूल ऑफ लाइफ, उससे मैंने स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाए थे ऑफ फिलोसफर्स एंड डिफरेंट ऑथर्स, ये मैंने बनाए थे। मेरे स्कोर ऐसे में 117 थे, एथिक्स में 116 ये थे, और कुछ बेसिक्स है बस। जस्ट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एसेज, तो लिखने से ही आपको पता चलेगा। हाँ, उसको थोड़ा फीडबैक लेना पड़ेगा, किसी लाइक 2-3 दोस्त हैं या किसी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया कि उनको पसंद आ रहा है या नहीं, वो कुछ अच्छा अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस? लाइक GS1 के लिए तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा नहीं क्योंकि ऑप्शनल था। देन केस स्टडीज जो मैंने बनाए थे वो मैं GS4 में भी यूज करता था, GS3 में भी एज एन एग्जाम्पल में यूज कर लेता था। इवन इन ऐसे लाइक एक पर्सपेक्टिव आ जाता था ज्योग्राफी का, लाइक बोलते हैं ना जी ऐसे में डायमेंशन होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, तो ये मैं एक ज्योग्राफी का डायमेंशन हो जाता था, लाइक 2 पैराग्राफ में ज्योग्राफी पे लिख लेता था, कुछ भी कोई भी ऐसे टॉपिक दे दो
मैं उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव जरूर ले आता था, तो ऐसे हेल्प किया। सी सैट लाइक मैंने तो कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था, बट अगेन देखो तुमको 66 मार्क्स लाना है, तुमको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। तो उसके लिए तुम देखो कि तुम क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी है। तो मेरे लिए था कि मुझे पीएनसीएम प्रोबेबिलिटी बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे, तो वो क्वेश्चन आता तो मैं फिर टाइम वेस्ट भी नहीं करता था। मैं सोच लिया था कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि लाइक अराउंड 25 to 30 आते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसमें 15 इजी होते हैं, मैं वो 15 करूंगा। उसके बाद मैथ्स में जो मुझे इजी लगते थे, मुझे लॉजिकल पार्ट ज्यादा इजी लगता था, तो मैं लॉजिकल अटेम्प्ट करता था। उसके बाद मैथ्स के जो इजी इजी होते थे मैं वो अटेम्प्ट करता, तो मैं अराउंड 50 अटेम्प्ट करता था, उसमें मोस्टली हमेशा 90 से ज्यादा आते थे मुझे लाइक। तो मैं सिलेक्ट डिसाइड करता था वहां पे कि कौन सा क्वेश्चंस मुझे करने हैं। ये कर सकते हो सी सैट में, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, कितना भी हार्ड कर ले वो 66 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें 38 क्वेश्चन सही करने हैं, अराउंड 30-28। तो देखो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ थोड़ा वीकनेस है तो उसमें तुम वर्क कर सकते हो, जैसे मेरा लाइक वो पाइप्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो मेरा वीकनेस था, तो बस उसमें मैंने वर्क किया क्योंकि वो क्वेश्चन आते ही है हमेशा, तो उसको कैसे सिलेक्ट सुधार कर सकते हैं। तो मैंने लाइक यूट्यूब पे देखा एक दो एक्सप्लेनर वीडियो, तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है उसको डिसाइड कर लो पहले, ये क्वेश्चन मुझे करना है, और जो वीकनेस है उसको देख लो एक दो वीडियो यूट्यूब पे, और तो लाइक अगर 66 मार्क्स लाना है यार, वो हो ही जाता है। अब देखो लाइक अब तो बोल नहीं सकते कि अगले साल वो क्या करेंगे। तो अगेन लाइक अगर मैं रहता तो मैं बहुत सारा टेस्ट देता अगेन, क्योंकि आपको अब तीन चीज चाहिए करने के लिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए क्योंकि तीनों स्टेटमेंट अब आना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है या नहीं, इंडिया का पोजीशन क्या है। तो ये सब करने के लिए तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पे बस रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैं करता था क्योंकि न्यूज़पेपर पे सिर्फ प्रूव्ड रहते हैं न्यूज, लाइक ये हुआ, ये आज हो रहा है, ये है। आपको उसका डेली न्यूज एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आ रहा है समथिंग, हाँ नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर वाला, तो बस न्यूज़पेपर में उतना नहीं होगा, ठीक है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में भी थोड़ा बहुत होता है बैकग्राउंड, बट इस सारे में आपको पूरा बैकग्राउंड दे देंगे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट है, मणिपुर का पॉपुलेशन मतलब कंपोजिशन क्या है, कुकीज कितने हैं, माइटीज कितने हैं, इनके बीच में कब से चल रहा है इंसर्जेंसी, क्या एथनिक कन्फ्लिक्ट है, रीजन्स क्या है, बॉर्डर मैप भी दे देंगे कि मणिपुर के आसपास क्या क्या है, कौन से स्टेट है, हिल्स क्या क्या है। तो ये सब आपको डेली न्यूज एनालिसिस में मिल जाएगा। तो ये आपको बैकग्राउंड अब पता होना चाहिए न्यूज का, आप जस्ट रिलाई नहीं कर सकते न्यूज पे। तो कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं ये करता और खूब सारे टेस्ट देता, बस टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। लाइक पॉलिटी में जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतने आपको नया नया चीज पता चलेगा। मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों को पता नहीं कितने को पता होगा, बट प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है बाकी सबसे डिफरेंट होता है। प्रेसिडेंट के ओथ में होता है लाइक टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुझे पता नहीं था जब मैं, लाइक कितना भी बार भी पढ़ लो वो आप नोटिस नहीं करोगे लक्ष्मीकांत में, बट जब आप टेस्ट दोगे तब पता चलेगा हाँ ये डिफरेंट है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन बना के दे देंगे। तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट, बहुत कंसेप्ट वाला फैक्ट वाला क्लियर होगा। तो मैं तो यही करता, पता नहीं एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता, बट मैं टेस्ट देता, अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करता और रिवाइज बार बार करता। या सो मैं लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट from June 2021 itself when I started my serious preparation. Even before the prelims मैं 2 iteration दे चुका था टेस्ट के, जीएस के चारों के, लाइक आई गिवन मोर देन 40 टेस्ट। तो मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट थे, मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे सारे टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक हमेशा टॉप 2 या टॉप 3 में रहता था। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था कि लाइक मैं हो जाऊंगा, मैं अच्छे कर लूंगा, मैं पेपर कंप्लीट कर लूंगा अच्छे से। सो आई गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इनमें लाइक डेली आंसर राइटिंग भी होता था, जो मैं ये ज्वाइन किया था उसमें एक पार्ट था डेली आंसर राइटिंग का, कि मैं 2 आंसर उनको भेजता था अपलोड करके, वो नेक्स्ट डे फीडबैक दे देते थे। बट अब नहीं होता है, बट मैं आंसर, मुझे पता था कि आंसर लिखना है, आपको टेस्ट सीरीज देना है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आपको टेस्ट, क्योंकि लाइक उनको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, आप कितना भी पढ़ लो अगर वो आप एक्चुअल मेंस में लिख नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, यार ऐसा तो मैं सोच नहीं था कि मैं ऑप्शनल के लिए पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर एज ए हॉबी, इवन नॉट हॉबी, हैबिट, कि मुझे न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना है। ये भी नहीं था कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था मैं पढ़ता था, इवन स्पोर्ट्स हो गया या मूवी रिव्यूज हो गया या कुछ भी क्राइम स्टोरीज हो गया, कुछ भी जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं पढ़ता था। जो भी उसमें लाइक यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता था, फॉर एग्जांपल
केस स्टडीज हो गया, डेटा हो गया, या कुछ कोट्स हो गया, बजवर्ड हो गया, वो मैं एक डायरी में लिख लेता था जस्ट एज अ फ्रेज। और फिर प्रीलिम्स के बाद मैंने उसको कंपाइल कर लिया, लाइक GS1 का डेटा हो गया, GS2 का एग्जांपल्स हो गया, GS3 का डेटा हो गया, GS4 का एग्जांपल्स हो गया, ताकि वो मेरे पास एक शीट्स में हो रिवाइज करने के लिए जल्दी। तो ऐसे ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। सो व्हाट इज अप्रोच ऑफ मैपिंग पार्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के लिए सबसे पहले पेपर 2 का मैपिंग से आते हैं, जो लाइक 10 क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए मैंने प्रेम पटेल का बुक यूज किया, इंडिया थ्रू मैप्स। वो मैंने लाइक मेन से 2-3 हफ्ते पहले उसको पूरा 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, इंडिया थ्रू द मैप्स, कि कौन से कहाँ पे हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लिया था कि क्या क्या आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये करना, सिंस आई वाज ए क्विजर बैक इन माय कॉलेज, तो मुझे मैप्स का आइडिया था, लाइक कौन से कंट्रीज कहाँ पे, कौन से ओशंस कहाँ पे हैं, लाइक कैरिबियन में कौन से कंट्रीज कहाँ कहाँ है। तो ये मुझे आइडिया था बेसिक। और आप एटलस यूज कर सकते हो, लाइक ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको 2 तरह के मैप चाहिए, लाइक एक क्वेश्चन हो गया पेपर 2 वाले, और एक मैप आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने का तो मैंने बता दिया कि इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, उसका रीजनल पार्ट बना लो। वर्ल्ड का मैप का भी आप लाइक रीजनल उसको भी बना सकते हो, बस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दिखा दो, या बस अफ्रीका दिखा दो, या पूरा वर्ल्ड मैप दिखा दो, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने मैपिंग के लिए कुछ नहीं किया, बस प्रेम पटेल और जो भी मैप्स मिलते थे उसको मैं सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में कर लेता था। तो ये मेरे मैपिंग के स्ट्रेटजी थे। टेस्ट यू यूज टू गिव ऑफलाइन और ऑनलाइन? सारे ऑफलाइन होते थे टेस्ट, मैं यहाँ टेस्ट सेंटर में जाके टेस्ट देता था। हैव यू अटेम्प्टेड ऑल पार्ट्स इन मैपिंग? इस साल लाइक मैंने अटेम्प्टेड 8-10 होते थे, मेरे 8 सही थे, मैंने 8 ही अटेम्प्ट किया था, 8 आता था मुझे। तो वो प्रैक्टिस से हुआ। मैं प्रेम पटेल इतना बार रिवाइज कर लिया था कि मुझे पता चल गया था कि कौन से कहाँ पे है। और PYQ से भी शायद 2 रिपीटेड थे, तो मैंने PYQ देखा था तो मुझे पता था ये यहाँ पे है, एक्चुअली इसमें भी बोल सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड GS सिलेबस बिफोर जून 2021? नहीं यार, मैंने जून 2021 में स्टार्ट किया था, माई सिलेबस गॉट कंप्लीटेड बाय जनवरी 2022 हो गया। और किसी क्वेश्चन है यहाँ पे? लाइक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफी का, सो लाइक मैंने बस पहले सिलेबस देखा, इवन बिफोर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन मैंने देखा कि सिलेबस क्या क्या है, फिर PYQs देखा। ये PYQs इवन इफ आई नॉट रीड द बुक्स, ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने पेपर 2 देखा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये मैं GS टाइप आंसर भी लिख सकता था। तो एक्चुअली ये सब लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो ये था कि आप पहले सिलेबस देखे, PYQs देखे, किसी टॉपर का स्ट्रेटजी देखे वो कैसे करते हैं, क्या क्या बुक्स पढ़ना, बुक्स तो सबके सेम स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। फिर आप खुद के नोट्स बनाए, ये सब कर देने के बाद फिर वैल्यू एडिशन का पार्ट आएगा, टेस्ट का पार्ट आएगा। तो बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी इजी हो जाता। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी लाइक आई डिड ज्योग्राफी, तो बैकग्राउंड का फर्क नहीं होता है, बस आप हाँ स्ट्रेटजी बना ले कि मुझे ये करना है। सो आई सेड अर्लियर कि लाइक आफ्टर आई स्टडीड अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई यूज्ड टू गो बैक टू द PYQs, उससे लाइक देखता था कि इफ आई एम एबल टू सॉल्व दोस PYQs बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड और नॉट। अगर नहीं होता था तब मैं लाइक एक्स्ट्रा ऐड करता था नोट्स में, या रिवाइज बार बार करता था जो भी मिस होता था। तो ये देख ले, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ आइदर थ्रू PYQs और जॉइन अ टेस्ट सीरीज, तब पता चलेगा ना कि लाइक यू हैव स्टडीड और इट इज गुड एनफ फॉर यू और नॉट। तो लाइक ये मेरा था कि मैं टेस्ट बहुत देता था, PYQs बहुत देखता था, अपने आप को एनालाइज करता था कि मैं एक्चुअली में कर सकता हूँ या नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। कब खत्म हुई? एक जनवरी 2022, जून 2021। सो आई यूज्ड टू गिव ऑल द 3 आवर टेस्ट। जो जितने टेस्ट दिए सारे 3 घंटे के टेस्ट होते थे। तो एट द बिगिनिंग ऑब्वियसली नहीं होते होंगे मेरे से कंप्लीट, मैं लाइक यूज्ड टू टू 3.5 आवर्स टू कंप्लीट। बट मुझे लाइक एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ टाइम लगेगा, मुझे मेरे आंसर उतने अच्छे नहीं होंगे, क्वालिटी अच्छे नहीं होंगे, बट जब मैं उनके साथ लाइक कंसिस्टेंसी टेस्ट देते रहूंगा मेरे इंप्रूव होंगे, ये एक्चुअली में इंप्रूव होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ से दिसंबर, लाइक दिसंबर 2021, मेरे सारे पेपर टाइम पे कंप्लीट होने लगे थे, क्वालिटी आंसर्स होने लगे थे, और लाइक मार्क्स भी अच्छे आने लगे थे। तो लाइक इफ यू जस्ट शो अप एवरी डे टू द टेस्ट सेंटर, जब भी टेस्ट होगा आप टेस्ट दो लाइक प्रिपेयर करके आओ, ये नहीं कि बस जाके टेस्ट देने लगे। प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, वैल्यू एडिशन करो, बस। अब मार्क्स मार्क्स उतना लाइक मैटर नहीं करता है, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, काफी टाइम जेनरिक फीडबैक भी होता है, तो आप कुछ अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो उनको आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये करता था। एनी मोर क्वेश्चंस? राइटिंग मैं दिखा सकता हूँ अपने आंसर, लाइक मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ लाइक धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। लाइक मैं अगर दिखाओ अपना फर्स्ट और लास्ट टेस्ट पेपर, फर्स्ट में हैंडराइटिंग मेरी बहुत छोटी होती थी, तो मेरे आंसर जो होते थे
लाइक 1 और 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाए, लाइक उससे ज्यादा मैं 7 मिनट में दे ही नहीं पाता था। बट एट द एंड कि मैं हैंड राइटिंग को बड़ा बड़ा कर लिया, स्पेसेस देने लगा, वो आपको लाइक प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। मैं लाइक दिखा नहीं सकता हूँ अपने, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी होती नहीं थी, बट प्रैक्टिस के साथ वो अच्छी हो गई, प्लस स्पीड बढ़ने लगा, लेटर्स बड़े हो गए, गैपिंग अच्छा होने लगा, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन अच्छा होने लगा। तो मेरे अच्छे थे, लास्ट क्लास तक अच्छे हो गए, स्टार्टिंग में अच्छे नहीं थे। पेपर में 3 घंटे में ऐसा तो नहीं होता था यार मेरे साथ। लाइक मैं ऐसे अटेम्प्ट करता था, अगर जीएस के पहला 2 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला 2 क्वेश्चन चाहे जितना भी हार्ड हो मैं उसको अच्छे से करूंगा। देन आई वेंट टू लाइक 11 to 20, क्योंकि वो 15 मार्क का है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मैं वो लिख लूँ मुझे हायर मार्क्स मिलेंगे। तो वो कर लेता था, फिर बाकी के 8 क्वेश्चन कर लेता था। तो लाइक मैंने इतने टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए थे कि मेरा हैंडराइटिंग बिगड़ता नहीं था। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। Like my ethics notes used to be, I used to leave a gap in my ethics note कि मैं बाद में ऐड कर सकूं। So I used to make on A4 sheets, तो मैं यहाँ पे साइड में एक लाइन बना देता था, ये मेरे नोट्स होते थे। यहाँ कुछ भी नया पता चला मुझे, फॉर एग्जांपल नया एग्जांपल हो गया, या कुछ कोट्स हो गए, या कुछ डेफिनेशन हो गया, या कुछ भी मुझे पता चला, मैं इसमें ऐड कर लेता था। तो ये आप हर नोट्स के लिए कर सकते हैं, तो आपको अलग से करंट अफेयर्स के बनाने नहीं पड़ेंगे। तो आप सब नोट में ये गैप छोड़ दो, ताकि आपको कुछ भी नया पता चले आप ये लिख लो। तो ये मैं करता था। एनी मोर क्वेश्चन? वीडियोस, वीडियोस क्यों मैं लाइक किसी के लिए कोई वीडियोस फॉलो नहीं किया उतना। मैं यूट्यूब पे बस इंटरटेनमेंट के लिए जाता था वीडियोस, या यूपीएससी के लिए नहीं। और एनी मोर क्वेश्चंस? इफ नॉट, या टाइम मैनेजमेंट। सो आई हैड लाइक, जितना मैं टेस्ट देता था, वीकली मेरा टेस्ट होता था। सो सपोज कि संडे को टेस्ट है, अगर ये पूरा GS1 का टेस्ट नहीं होता था, 3 आवर लेंथ टेस्ट होता था, बस मान लो बस आर्ट एंड कल्चर का। मान लो जैसे जून से मैंने स्टार्ट किया, जून 31 को टेस्ट है, तो आर्ट एंड कल्चर में 5 दिन में खत्म कर, 2 दिन में मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लूंगा, 2 दिन में मैं बना लूंगा अपने नोट्स, 1 दिन में रिवाइज कर लूंगा। देन संडे को टेस्ट दूंगा, संडे को एनालाइज कर लूंगा टेस्ट को। तो ये जो वीकली शेड्यूल होता था, इसके बेसिस पे मेरा डेली टारगेट्स होता था कि डेली टारगेट अगले दिन मुझे पढ़ना क्या है, किस वक्त में क्या पढ़ा। तो मैं लाइक रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का प्लान बना लेता था। तो आई डेली फिक्स शेड्यूल कि लाइक सुबह में उठने 7-8 बजे उठना है, देन न्यूज़पेपर पढ़ना है, देन रैंडम सोशल मीडिया यूट्यूब देखना है। उसके बाद से जैसे 12 बजे क्लास होता था सबीर सर का, उससे पहले मैं आधा घंटा देता था ये देखने के लिए कि क्लास में क्या पढ़ाया गया, उसको रिवाइज कर ले, ताकि क्लास में मतलब थोड़ा लाइक समझ में आ जाए जल्दी के लिए। वो मैं देख लेता था। फिर लाइक 12 से 2 क्लास होते थे, देन 3:30 से 5:30 मेरा जीएस का होता था, 6:30 से 8:30 जैसे मैंने बताया ऑप्शनल का होता था, मैं नोट्स बनाता था, प्लस PYQs देखता था वगैरह वगैरह। देन 9:30 से 10:30 वो डेली न्यूज एनालिसिस पढ़ता था। फिर 10 से 12 जीएस का। तो डेली टारगेट मेरा मान लो पहले ही पूरा हो जा रहा है, तो मैं अपने आप को फ्री कर देता, मूवीज देखता था या स्पोर्ट्स का हाईलाइट्स देखता था। तो लाइक डेली टारगेट्स होता था, बट अगेन फ्लेक्सिबल था ये। नहीं लाइक मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, बस ये इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। मैं इसी को फॉलो करके अपना सब्जेक्ट, या बस ऑप्शनल का लाइक मैं सबीर सर का ज्वाइन किया था, बाकी सब मैंने खुद से किया था। एनी या लाइक मैं यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था, तो आई थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन ही मान लेंगे, मैं यहाँ पे रहता था, ऑफलाइन जाके टेस्ट देता था यही, और कुछ तो नहीं। हाँ क्लास मैंने ऑनलाइन लिया सबीर सर का, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन ही होता था, ऑफलाइन तो शायद लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। व्हेन आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, कुछ भी अच्छा डेटा लगा, मैं वो डेली डायरी लगता था, डायरी में उस डे में मेंशन कर लेता था। बट आफ्टर द प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में वो डेटा तो यूज नहीं होते उतना, वो मुझे ऐड करना है। मैं जो भी नोट बनाता था वो मेंस के लिए बना रहा हूँ ना, तो आफ्टर द प्रीलिम्स उसको मैंने कंसोलिडेट कर लिया कि GS1 का ये डेटा है, GS2 का ये डेटा है, GS4 का ये एग्जाम्पल्स है, ऑप्शनल का ये केस स्टडीज है, ये डेटा है। तो ये मैं सिलेबस के में भी देखता था कि क्या रिलेटेड है ऑप्शनल से। अगर पॉपुलेशन का डेटा है तो मैं ऑप्शनल वाले में डालूंगा, क्योंकि वो ऑप्शनल में एक पार्ट है पॉपुलेशन। अगर कोई एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है मैं ऑप्शनल में डालूंगा, या GS से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है कोई भी अच्छा एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का, तो मैं GS1 में डालता था। GS2 का कोई पॉलिटी का बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो मैं GS2 में। तो ये कंसोलिडेट मैं प्रीलिम्स के बाद किया था। नहीं उसके कभी नोट्स नहीं बना, क्योंकि पर्सपेक्टिव है राइट, वो तो लाइक सबकॉन्शियस माइंड में लाना पड़ेगा। उसके नोट्स बना के तुम क्या करोगे, वो मे भी अगले साल पूछे नहीं पूछे, न्यूज में होगा नहीं होगा, तो अभी उसके नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है। वो आपको बस समझना पड़ेगा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, क्या उनके डिमांड है, क्या इनके डिमांड है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, म्यांमार का रोल क्या है, इंडिया गवर्नमेंट क्या करे। बट अगेन इसके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लगेगा अगर आप नोट्स बनाओगे तो। अगेन ये मेरा थिंकिंग था, दूसरे टॉपर्स का कुछ और थिंकिंग हो सकता है,
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें। तो मैंने पढ़ा तो था, बट अगेन हाँ नोट्स में कुछ कुछ अच्छे सजेशंस मिलते थे, वो मैं ऐड कर लेता था। बट एआरसी का समरी लिया था, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिए थे। लाइक इफ गवर्नेंस वाला का नोट्स है मेरा, तो उसके एआरसी का क्या समरी है। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट वाला नोट्स है मेरा, तो एआरसी में अगर कुछ अच्छा समरी है या डिफरेंट कमिटीज का कोई अच्छा समरी है तो मैं ऐड कर लेता था अपने नोट्स में। नहीं नहीं, लक्ष्मीकांत तो एनफ नहीं है मेंस के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे मेरे टाइम में आया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो इसके लिए मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल यूज किया था गवर्नेंस का। उसमें ये सारे अच्छे से दिए हुए हैं, कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया, आरपीए हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, एसएचजीज हो गया, ये सब गवर्नेंस के पार्ट्स हैं। इसके मेरे खुद के नोट्स थे। हाँ कुछ भी नेट से अच्छा मिल रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लाइक मिल रहा है, वो ऐड कर लो नोट्स में, डिफरेंशिएट करेगा। एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक सिलेबस देख के, लाइक सिलेबस से तुमको पता चल जाएगा वेदर रिलेवेंट है या नहीं है। और होता है क्या, केस स्टडी में तुम ब्लफ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 100% रिलेटेड उससे हो ही है। क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन डिमांड का कुछ और हो, उसको तुम जो भी केस स्टडी प्रिपेयर करके गए उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो वहां पे एग्जाम में। लाइक अगर तुम्हारे लाइक एक्चुअल केस स्टडी नहीं आ रहा है, वहां पे कुछ भी जेनरिक नॉलेज है उससे तुम केस स्टडी बना सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, लाइक कोई भी अगर सेटलमेंट का क्वेश्चन है तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम दिल्ली में रहते ही हो, दिल्ली का बना दो यार, दिल्ली में तो तुम कुछ भी केस स्टडी बना सकते हो। तो एक्चुअली एग्जाम में तुमको लाइक वहां पे सोचना पड़ेगा, तुम्हारे केस स्टडी नहीं आ रहे हैं, देखो तुम्हारे आसपास का जो भी नॉलेज है उससे तुम केस स्टडी बना दो। ये भी मैं करता था, ये टेस्ट सीरीज में करता था। एक्चुअली में इसमें तो नहीं किया, बट टेस्ट सीरीज में मैंने ये काफी किया कि अगर मेरे दिमाग में कोई केस स्टडी नहीं आ रहा है, मैं वहीं पे बना देता था केस स्टडी। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करें, मेरा कोई स्ट्रेटजी तो नहीं था कोटेशन बेस्ड, जस्ट प्रैक्टिस करता था कि लाइक जो भी मिल रहे हैं उसका 2-4 डायमेंशन लिख दूं, 2-4 एग्जांपल लिख दूं अच्छे से, लाइक उसको इंट्रो और कंक्लूड कर दूं। सिंपल जस्ट फ्लो फ्लो में जो उस वक्त दिमाग में आ रहा है मैं लिख देता था, और कुछ स्ट्रेटजी बना के नहीं गया था मुझे कैसे करना है। बस यही था कि हाँ तो एक्सको एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल्स अच्छे से यूज करना है बस। एनी मोर क्वेश्चंस? यार ऐसा तो मेरा कोई नहीं टाटा, जो क्लास में पढ़ रहा है, क्लास का जैसे चल रहा है मैं उसके हिसाब से ही चलता था। क्लास में कुछ और चले, मैं कुछ और चल रहा हूँ, तो काफी हौच पौच हो जाएगा। तो क्लास में जैसे जैसे चल रहा है आप वैसे वैसे ही चलो। हाँ हाँ, मतलब लाइक तुम क्लास के साथ ही चलो ना, तुम अपने क्यों चलना है। जैसे मेरा एडुकेमी में पहले मान लो जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर पर्सपेक्टिव आ जाता है, तो मैं उनको फ्लो के साथ ही चलता था, क्योंकि तुम्हारा टाइम है ना, तुम 24 का अटेम्प्ट दे रहे हो, राइट। तो हमें टाइम है, तुम देखो सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है, उनके फ्लो के साथ ही चलो। हो गया क्वेश्चंस? चलो, थैंक यू एवरीवन।